Good morning to all and welcome to my class. Myself S.K. Mishra from Shyamdari Senior Secondary School, Eta. Today I am going to start the 12th class Flamingo book, and the first chapter of this book is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was really the story writer and he was very popular novelist also. In fact, this story is realistic because it is related with the war between Persia and France. This war took place during 1870 to 71. Now, Daudet explains in this story the real form of the situation of the war, and the main character of this story are Franz and Mr. Hamel, Watcher the blacksmith. Actually, he wants to point out two things. First, impact of war on people, means लोगों पर एक युद्ध का क्या प्रभाव पड़ जाता है, उनकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है. Secondly, the linguistic identity. Linguistic identity, you understand, the language of that country is very essential to feel the freedom. Means किसी भी युद्ध का भाषा का बहुत महत्व होता है. जब हम युद्ध में किसी में हार जाते हैं तो हमारी भाषा ही हमारी एक स्वतंत्रता होती है. So the linguistic identity is the main and the major point of this story. Now the story takes place by the main character Franz and Anne Hamel. Anne Hamel is the strict teacher of the school of France. He is the language teacher. He teaches the language, especially the English language. And Franz, who is only a school boy. Story starts, कहानी शुरू होती है. फ्रेंड आज थोड़ा सा स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका है, एंड ही इज गोइंग वेरी फास्ट, वेरी क्विकली ही इज मूविंग टूवर्ड्स, एंड एज ही द क्रॉसिंग ऑफ द मेन रोड, he see that lots and lots of people, there is a good crowd of the people around the bulletin board. Bulletin board, you understand, the notice board. Notice board के चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी है. यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो पर डे युद्ध की सूचनाएं जो इस पर लिखी जाती हैं, मोस्टली दे आर only the disturbing or only the war informations that are given to the people of the France. Now overall Persia has conquered the war over the France. पर्शिया ने फ्रांस के लोगों को हरा दिया है, एंड स्पेशली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. एल्सेस and Lorraine are captured by Persia. They have given a direct notice that since on the next day no French will be taught in the school. So this message has been noted down over the bulletin board where people are just crowded. लोग जहां उदास स्थिति में, बड़े चिंतन की स्थिति में खड़े हुए हैं नोटिस बोर्ड के चारों तरफ, वहां से फ्रेंच जैसे ही निकलता है, वन ऑफ द मैन ऑफ द फ्रांस नेम वॉचर द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार का काम करता है, लोहा पीटने का काम करता है, वो उसे रोकता है और कहता है व्हाई आर यू सो हेस्ट, इतनी जल्दी से क्यों भागे जा रहे हो. बट फ्रेंच ऑन अकाउंट ऑफ बिकमिंग लेट डिडंट माइंड ओवर दैट. फ्रांस अब उस पर ध्यान नहीं देता. वो सोचता है कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. एवरी डे आई एम रेगुलरली लेट, टीचर विल पनिश मी. जैसा हम लोग ज्यादातर कहते हैं कि कहो पनिशमेंट जब बच्चे को मिलता है तो कह देते हैं टीचर्स भी, जनरल लोग कहते हैं कि कहो मजा आया, लेट होते हैं तो कहते हैं अब क्या के लिए भाग रहे. इन द सेम मैनर
the writer thinks that the man is joking with him. He didn't stop there, but he is in confusion. Why so much people are gathered here? Slowly, he went on, and now he takes the speed to reach at the school in time. There are number of botheration in his mind on account of the friend, Anne Hamil. He is in doubt. उसे डाउट होता है कि he is the strict teacher. When I will reach at the school late, he will certainly punish. And secondly, he hasn't prepared the homework. उसने होमवर्क भी नहीं किया है. एन हेमिल ने उसे पार्टिसिपेट का जो चैप्टर याद करने के लिए दिया है, आज वो क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे. फ्रेंड ने वो चैप्टर याद नहीं किया होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सस्पेंस में है. तो व्हाट वुड हैपन टुडे? वेरी क्विकली ही रीचेस टू स्कूल. बहुत जल्दी से स्कूल पहुंचता है. नाउ टुडे द सिचुएशन इज नॉट यूजुअल, इट्स अनयूजुअल. आज उसे दिख रहा है कि आज स्कूल की सिचुएशन एकदम बदली है. एवरीवेयर देयर इज नो साउंड, नो हस्टल एंड वस्टल. आज कोई चहल पहल नहीं है. रेगुलरली ऐसा माना जाता था, और वो देखता था कि जब वो स्कूल में पहुंचता था, कुछ बच्चे चेयर्स और बेंचेस खींच रहे होते थे, कुछ बच्चे अपना याद कर रहे होते थे, कुछ अननेसेसरी बातें कर रहे होते थे. मीन्स देयर वाज ह्यू एंड क्राई एवरीवेयर इन द स्कूल. बट टुडे इट वाज जस्ट एज साइलेंट एज द संडे मॉर्निंग. आज तो बिल्कुल देखता है कि जैसे संडे मॉर्निंग हो, इस तरह से सब कुछ शांत है. He peeps through the window to judge the situation of the class, whether the students are in the class or the teacher is in the class or not. वो देखना चाहता है कि टीचर क्लास में है, बच्चे हैं या नहीं, आज इतना शांत क्यों है. बट एज ही पीप थ्रू द विंडो, जैसे वो खिड़की के अंदर बाहर से झांकता है, दिखाई देता है एवरी स्टूडेंट इज सिटिंग साइलेंटली एंड मिस्टर एन हेमिल इज मूविंग अप एंड डाउन इन द क्लास, having an iron rod under his arm. अपनी बगल में डंडा दबाए हुए मिस्टर एन हेमिल क्लास में मूवमेंट कर रहे हैं. बट एवरीवन इज साइलेंट. नाउ ही गोज टू द मेन डोर. मेन दरवाजे पर पहुंचता है. टुडे ही हैड नो चांस टू स्लीप इन द क्लास. आज उसे क्लास में घुसने का कोई चांस नहीं है. रोज तो वो परेशान नहीं होता था, क्योंकि जब ह्यू एंड क्राई होता था, बच्चे इधर उधर चल रहे होते थे, तो वो क्लास में चुपचाप घुस जाता था और टीचर उसे समझ नहीं पाते थे. आज फ्रेंड को ऐसा लग रहा है कि सर्टेनली ही विल बी पनिश्ड बिकॉज एवरीथिंग इज साइलेंट एंड द टीचर एन हेमिल हु इज मच मोर स्ट्रिक्ट विल नॉट गिव एनी टाइप ऑफ कंसेशन टू हिम. उसे लग रहा है कि टीचर उसे आज कोई कंसेशन देने वाले नहीं है, आज वो पकड़ा जाएगा. So as he entered in the class, Mr. M. Hamill says very peacefully. Mr. M. Hamill बहुत साइलेंट वे में कहते हैं, अरे फ्रेंड्स, have you come? आ गए आप? चलो, I was just going to start the lesson without you. मैं तो तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाला था, लेसन स्टार्ट करने वाला था. Take your seat. फ्रेंड बैठ जाता है अपनी सीट पर साइलेंटली. बट ही इज सरप्राइज टू सी समथिंग स्ट्रेंज इन द क्लास. आज उसे एकदम अजीबोगरीब स्थिति क्लास में दिखाई देती है. वो देख रहा है कि सम इम्पोर्टेंट रेस्पेक्टेबल, आई मीन द prestigious people of the village like a mayor and some old person are sitting in the class on the back benches. आज उसे बैक बेंचेस पर कुछ लोग बैठे दिखाई देते हैं गांव के. तो वो एकदम चौंक जाता है, सोचने लगता है कि व्हाई दिस थिंग हैपेंस इन द क्लास, व्हाई दीज पीपल आर सिटिंग इन द क्लास. नाउ ही इज इन डाउट. सो वो डाउट में आ जाता है ओवरऑल. तभी मिस्टर एम हेमिल उसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टैंड अप, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. एकदम खड़ा हो जाता है, उसे कुछ आ तो नहीं रहा है. एन हेमिल कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, आपने काम नहीं किया, आज हम तुम्हें मारेंगे नहीं. Now the learning work is over. He gives the writing work. Everything is silent. Nothing is to hear.
उसे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ बीटल्स आते हैं, कुछ कीड़े पतंगे आते हैं, खरखर की आवाज बस आ रही है, उसमें से क्लास में से राइटिंग वर्क भी ओवर हो जाता है। एन हेमिल की सिस्टर उनका थोड़ा लगेज पैक करती हैं, वो देख रहा होता है कि एन हेमिल की सिस्टर जो लगेज पैक करती हैं। एन हेमिल द टीचर सेज टू फ्रेंड घबराओ मत, तुमने जो होमवर्क नहीं किया है मैं मानता हूं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो तुम्हें मिल पर या फार्म में खेती का काम करने के लिए भेज देते हैं, इसके लिए वो भी जिम्मेदार है और मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्योंकि कभी कभी मेरे पढ़ाने का जब मूड नहीं होता है तो हम तुम बच्चों से गार्डन में पानी लगवाते हैं, या मैं फिशिंग के लिए जाता हूँ तब भी मैं ये काम दे देता हूँ। और थोड़े से स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं होमवर्क करने के लिए। 3 वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वीकनेस, ये कमजोरी जो आपकी होमवर्क है या नहीं आ रही आपको फ्रेंच लैंग्वेज, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, बैठ जाओ, वो उसे बिठा देते हैं और राइटिंग वर्क ओवर हो जाता है। नाउ ही स्टार्ट्स द लास्ट लेसन। अब वो बताते हैं कि टुडे आई एम स्टार्टिंग द लास्ट लेसन। नाउ ही फ्रेंड्स शॉर्ट हर लास्ट लेसन, वो डायरेक्टली बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, सिंस ऑन आई मीन टुमारो no French will be taught. New teacher will come. He will start the next language of the Persia. Persian language पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच को बहुत पश्चाताप होता है, वो रिपेंट करता है कि आज तक मैंने आखिर अपनी लैंग्वेज को क्यों नहीं पढ़ा है। उस दिन लेसन जब स्टार्ट करते हैं एन हेमिल, तो वो फैंटास्टिक लेसन उसकी समझ में आता है, क्योंकि इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो एन हेमिल इज ऑल्सो हैविंग द फोकस ओवर द लेसन बिकॉज इट इज द लास्ट लेसन। सेकेंडली देयर इज नो पनिशमेंट इन द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स। इवन हेमिल वाज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। एज द लेसन गोज टू बी एंड, जब लेसन खत्म होता है, एन हेमिल बड़े आज न्यू ड्रेस में है, एकदम उन्होंने ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट है, एम्ब्रॉयडर्ड कैप है। ये भी उसके डाउटफुल होता है क्योंकि एन हेमिल डेली ऐसी ड्रेस पहनते नहीं है, या तो कोई इंस्पेक्शन हो स्कूल में या प्राइज डे हो तो वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं। इसलिए उसे अब क्लियर हो जाता है कि सबके पीछे रीजन क्या था। जैसे ही वो कहते हैं कि आज लास्ट लेसन है, आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ वो लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी है उसको अप्रोच कर रहा, उसको बता रहा है कि लैंग्वेज की क्या वैल्यू होती है, और बताता है कि उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं फ्रेंच के, कि वो बिल्डिंग बोर्ड पर लोग क्यों खड़े थे, आज स्कूल में साइलेंस क्यों है, बिल्डर्स यहाँ क्यों बैठे हैं, आखिर बैक बेंचेस पर, उसकी समझ में आ जाता है। ये सब रेस्पेक्ट करने के लिए आज जो फ्रेंच ने 40 ईयर्स सर्विस दी है, इस स्कूल को 40 साल दिए हैं, 40 ईयर्स, उसकी सेवा का पूरा रेस्पेक्ट करने के लिए सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ओवरऑल द लेसन टेक्स एंड, लेसन समाप्त होता है। फ्रेंच सेज टू द स्टूडेंट्स दैट लैंग्वेज इज द की ऑफ देयर टीचिंग। लैंग्वेज व्यक्ति की भाषा, या जिसकी भाषा जीवित है, वो कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। इवन आफ्टर बीइंग एंस्लेव्ड ही विल फील फ्रीडम। उसे अगर गुलाम बना भी लिया जाए तो भी वह अपनी भाषा के द्वारा अपने को फ्रीडम महसूस करता है, और फ्री होने के लिए वो बताते हैं कि हम अपनी भाषा को कभी नहीं मरने देंगे। फ्रेंच इज द बेस्ट लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, इट हैज लॉजिक and importance of its own in all over the world, and noted down the last word by La France means long live France. France की ये भाषा अमर रहे। By saying these words, he bent down his head over the blackboard because he had no capacity to see
the students of his class again and make a gesture by hands to the time is over. Now you can go. This is the end of this story. Okay.